Afternoon, everyone. So today we will discuss NDA Maths paper 2022. Myself Ritika. I am Mathematics Faculty in New Career Academy. So we will discuss paper with the help of some short tricks. So how can we use these short tricks to solve our questions easily and within few minutes? So our first question is, how many four-digit natural numbers are there such that all digits are odd? You have to find a four-digit natural number such that all digits are odd. So 1, 3, 5, 7. These are all our natural number. Here रेपिटेशन की कोई बात नहीं की हुई, तो वहां पर रेपिटेशन अलाउड होगी जिस क्वेश्चन में रेपिटेशन के रिलेटेड कुछ नहीं लिखा हुआ. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वी हैव 1, 3, 5, 7 and 9. 5 choices for this, and for this and this. So the answer is 625. So next, second question is, here we can fix the value of n to solve the question easily. So we will fix the value of n as 2. So this will become summation r is equal to 0 to 2. 2 की power r c 2 comma r. This will become c 1 comma 0 plus c 1 1. When you will solve this, c1 comma 0 will become 1 and c0 is 1, and this will become 2 into 1. This will become 3. So when we will put the value of the n is equal to 1, we will get the answer 3, B. So the answer is B. Now the next question is, if the different permutations of the letter of the word mathematics are listed in the dictionary. ये क्वेश्चन डिक्शनरी रैंक का है. इसमें ये बोला गया है कि सी से पहले कितने आपके वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग. तो हम ए, सी से पहले ए आता है तो हम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स ए को फिक्स कर लेंगे. तो सी से पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे जो कि बनेंगे. जब ए फिक्स हो जाएगा तो वी आर लेफ्ट विद द टोटल 10 अल्फाबेट. दैट विल बी 10 फैक्टोरियल, जिसमें से आपके 2 एम्स रिपीट कर रहे हैं एंड 2 टीज रिपीट करें. यहाँ पर हम ए को एक ही बार काउंट करेंगे बिकॉज हमने एक बार ए को फिक्स कर दिया, बिकॉज यहाँ पर हम वो वर्ड्स बना रहे हैं जो ए से स्टार्ट होंगे. सो दिस विल बिकम 2 फैक्टोरियल इंटू 2 factorial. When you will solve this, you will get the answer C. Now the next question. The next question is very easy. You can do it with the help of an example within a few seconds. But this is little bit tricky. F is a subset of Z cross Z defined by this. F is a function from Z to Z. Here Z is the integer. So if you will take the integer minus 3 and Y as minus 4, the product will come out to be 12, and when you will subtract these, you will get the answer minus 3 plus 4, 1. And here, if you will take x as 3 and y as 4, so the product will come out to be 12, but the difference is minus 1. So 12 is related to minus 1, 12 is related to 1. So this is not a function, because by the definition of function, every element of domain has a unique image in the codomain. So the first one is incorrect. Similarly, by using the same example, you can also cut the part 2. So both are incorrect. So its answer is neither 1 nor 2. Now the next one is fifth one. Here, this is the delta represent the determinant. यहाँ पर A13, A23, A33, they are respectively the minors of the elements A13, A23 and A33 respectively. आपको minors given है. And what is the value of delta? You have to find the determinant. Determinant is what? Determinant is basically A11 into C11 plus A13 into C13, A23 into C23 plus A33 into C33. When we multiply the minors with the help of the cofactor, you will get the determinant. And when you will solve the equation, you will get the answer A. Now the sixth one is, in the sixth question, this is the matrix which is given to you. Then you have to find the adjoint.
हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? वन, पहले हम ये रोज लिख लेंगे जैसे भी आपको मैट्रिक्स गिवन है. And when you will find the adjoint, this will become a null matrix. This will also become a null matrix. And by finding the adjoint, you can also get the A inverse, which will be adjoint A upon determinant A. And this will also be a null matrix. So all the three are correct. Now the next one is here. X is a matrix of 3 cross 3 order. And Y is a matrix of 2 cross 3 order. You know that matrix multiplication is possible if and only if the number of columns of first is equal to the number of rows of the second. So here you have to find ZYX. Is it a square matrix or not? Z is of order 3 cross 2 and Y is of order 2 cross 3. The multiplication is possible, so you will get ZY as 3 cross 3 of order 3 cross 3. Now X is of order 3 cross 3. So you will get a square matrix which contain the 9 elements. So this is true. Similarly, when you will find this also come out to be a 2 cross 2 matrix, which is also a square matrix with 4 entries. But XYZ is not defined because in case of YZ, Y is 2 cross 3 and Z is 3 cross 2. The matrix multiplication is possible for Y comma Z, that will be 2 cross 2, and X is of 3 cross 3. Here the number of column is not equal to the number of rows. So XYZ is not defined. So all the three are correct. Now the next is for how many quadratic equation the sum of root is equal to product of root. Sum of root is equal to product of root, that will be minus b upon a is equal to c upon a. जब भी माइनस आपका c माइनस b के इक्वल होगा तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशन होंगी जिसमें c आपका माइनस b के इक्वल आएगा. आप वेरी करते रहो नंबर्स को बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट्स, तो इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशंस बनेंगी ऐसी. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. Now the ninth one is, consider the following statements. The set of all irrational numbers between root 2 and root 5 is an infinite number. We know the denseness property of rational as well as irrational. दो rational और दो irrational number के बीच में infinitely many numbers रहते हैं. So this is true. The set of all odd integer less than 100 is finite set. This is false because जो integer है वो minus infinity से शुरू होंगे और फिर चलते जाएंगे. So this is a infinite set. This is not a finite set. So only one is correct. Now the next one is this. अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, this will become 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n. This is the sum of n natural number. You know that n into n plus 1 by 2. You will get n square plus n. So first is correct. But n square plus n plus 41 is always gives a prime number. This is false. When you will put n as 40, this will become 41 cross 41, which is not a prime number. So only one is correct. Now 11th question. Here x, the roots, pq be the roots of the quadratic equation this, and अगर roots है तो sum of roots कितना आएगा? minus b upon a. Product of root is c upon a. And when you will use this value and put it here, you will get the value of p minus q as 3 root c. Now the next one is, what is the diameter of a circle inscribed in a regular polygon? This is a circle. You know that the interior angles of this is when you will solve this with the help, ये आपका एक सर्कल है, यहाँ पर ये जो कोड्स होती है ये पॉलीगन को बाइसेक्ट करती हैं. ये हमने 10th क्लास में सर्कल के चैप्टर में पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल. सो यहाँ पर ये आपका रेडियस है एंड दिस इज द लेंथ विच इज ऑफ 1. ये हाफ हो जाएगी. तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 2 plus root 3 सेंटीमीटर. नाउ द नेक्स्ट वन इज 13. आपके पास एक सेट है A टू नेचुरल नंबर. सेट A हमें गिवन है, डिफाइंड बाय fx क्या है? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर. तो जब मैं यहाँ पर f of 7 लूंगी तो प्राइम फैक्टर 7 आएगा. फंक्शन x की जगह a डालूंगी. दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन.
8 का जो प्राइम फैक्टर आएगा वो 2 आएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है। एंड सिमिलरली 9 का भी आ जाएगा, ऐसे 3, ऐसे मैं इन सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकालूंगी। एंड जब मैं ये सभी प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी तो मेरे पास 6 नंबर्स आएंगे, सो द आंसर इज 6। आफ्टर दैट 14th क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर दिस हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये नॉट करेक्ट बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सो the relation is x comma y belongs to natural number such that x square is equal to y cube. कोई भी for reflexive relation every element should be related to itself, so 2 belongs to natural number, 2 square is not equal to 2 cube. तो अगर मुझे एक भी एग्जांपल मिल जाए तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, so first one is incorrect. Similarly 4 8 square is equal to 16, but 16 square is not equal to 8, so this is also false. But this is not symmetric, even this is not transitive, so all the three are incorrect. Here we have to find the incorrect, not the correct, so all the three are incorrect. Now 15th question, A intersection B is equal to A intersection C implies B is equal to C, and A union B is equal to A union C implies B is equal to C. We know the condition that A intersection B is, अगर ये दोनों इकट्ठे होंगी and A union B, तब भी आपका B C के इक्वल आ सकता है। और आप सेट के एग्जांपल्स भी लिख सकते हो जिसमें ये गिवन कंडीशन होल्ड हो रही हो, तो वहां से जब आप चेक करेंगे B इक्वल टू C नहीं आ रहा, ना ही यूनियन के केस में ना ही इंटरसेक्शन केस में। बट अगर ये दोनों कंडीशंस इकट्ठे होल्ड करती सो बोथ आर करेक्ट, बट अभी ये अलग अलग हैं तो बोथ द कंडीशंस आर इनकरेक्ट, सो द ऑप्शन इज नाइदर वन नॉर टू। हियर दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हमने मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू, हम मॉड्यूलस अलग अलग कर सकते हैं। तो जब मैं ये करूंगी तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, this will cancel out and you will get the answer 1. Now what is the angle such that z is purely real? यहां से क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा को रियलाइज करेंगे बोथ साइड। और हमें क्या चाहिए, z इज प्योरली रियल। अगर z प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट को आप 0 रखेंगे। जब हम इमेजिनरी पार्ट को 0 रखेंगे तो वहां से हमारे पास साइन x इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा कब 0 होता है, n पाई पे, सो द आंसर इज C. एंड in the 18th question z is purely imaginary, तो हम रियल पार्ट को 0 रखेंगे। रियल पार्ट को 0 रखेंगे तो आपका 2n plus 1 पाई बाय 2 आएगा। आफ्टर दैट दिस, ये क्या आपको सम p और q सम है दो सीरीज के। आप जब इसमें हमने ये शॉर्टकट किया हुआ कि जब n को हम 2m माइनस 1 पुट कर देते हैं, जो भी टर्म आपसे पूछी हुई है, तो m इज दैट टर्म। तो आपसे फर्स्ट टर्म पूछी है तो m यहाँ पर 1 है, तो n को हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा D आंसर इसका, दिस इज। तो जब मैं n को 1 पुट कर दूंगी इस रेशो में तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब मुझे 10th टर्म चाहिए तो n को मैं 2m माइनस 1 पुट करूंगी, दैट विल बी 20 माइनस 1 19। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 33/59 आंसर आएगा। सिमिलरली जो आपकी डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज बढ़ रहा है, ठीक है, तो कैपिटल डी आपका ऑलवेज कॉमन डिफरेंस हमेशा बिगर रहेगा, और स्मॉल डी जो फर्स्ट सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा छोटा रहेगा, सो कैपिटल डी शुड बी ग्रेटर देन डी। Now what is the value of q for the coefficient? We know that the in case of binomial theorem the general term is ncr x की power n minus r a की power r. So here we have to find the coefficients of x cube and x की power 6. So the coefficient of x cube, general term is 9cr x की power 9 minus r a की power r. तो हम 9 माइनस r को 3 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 6, मतलब आपकी एक 7th टर्म है। ऐसे जब मैं इसको 6 के इक्वल करूंगी तो मेरे पास दोनों टर्म्स आ जाएंगी। जब मेरे को दोनों टर्म्स पता चलेगी, r की वैल्यू पता चलेगी, तो हम वहां से कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। और जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, p।
नाउ उसके बाद सिमिलरली यहाँ से मिडल टर्म क्या होती है, मिडल टर्म एन क्या है हमारे पास 9 ऑड, और ऑड के लिए n प्लस 1/2th टर्म एंड n प्लस 3/2th टर्म, दो मिडल टर्म्स होती हैं। तो जब हम दो मिडल टर्म्स निकाल लेंगे तो वहां से मेरे पास जो कोफिशिएंट्स आएंगे वहां से हम p/q आंसर आएगा। सिमिलरली ऐसे ही एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 का भी हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द जनरल टर्म NCR x की पावर n माइनस आर, a की पावर r। तो वहां से हमारे पास p स्क्वायर रेशो q स्क्वायर इज 7/2। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, काफी बार पेपर में आता है एनडीए के। तो हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म। यू हैव टू मेक अ 4 लेटर वर्ड। यू हैव उस 4 लेटर वर्ड में से आपको 2 वोवेल्स चाहिए एंड 2 आपको क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन वर्ड फ्रॉम द वर्ड क्वेश्चन हमने बनाना है। क्वेश्चन वर्ड में हमारे पास कितने वोवेल्स हैं, A E I O U, ये हमारे पास क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। यहाँ पर U है, E है, I है और O है। तो हमारे पास 4 वोवेल्स हैं और 4 ही कॉन्सोनेंट्स हैं। तो 4 में से कोई भी 2 सिलेक्ट करूंगी, कॉन्सोनेंट्स भी वोवेल्स भी, लेकिन आपस में अरेंज भी तो होंगे। तो जब मैं इनको सॉल्व करूंगी सो दिस विल बिकम 864। कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो डिनोमिनेटर में आपका कुछ नहीं आएगा। How many 8 letter word with or without meaning can be formed from such that consonants and vowels occupy alternate positions? Consonants and vowels they occupy the alternate position. This is the alternative rule. इसके लिए हमने शॉर्टकट किया था कि जब भी alternate positions में क्वेश्चन में 4 ही vowels हैं, 4 ही consonants हैं, जब अमाउंट इक्वल होती है तो 2 into n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, तो 2 into 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, आई थिंक सो 4 फैक्टोरियल 24 into 24 into 2। You can calculate from this. Now this is how many 8 letter word with or without meaning can be formed so that all the consonants are together. हमारे पास 4 vowels हैं, 4 consonants हैं। जब भी टुगेदर की बात होती है तो 4 जो भी टुगेदर लेते हैं चीजें उनको हम एक ही चीज मानेंगे। तो हमारे पास टोटल 5 फैक्टोरियल हो गए, लेकिन वो 4 कॉन्सोनेंट्स आपस में अरेंज होंगे, ठीक है। तो और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी है, 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 2880। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे बात की है डेल्टा इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। C11, C12, C13 they are the cofactors of the matrix and A of the A minus A11, A12 and A13। ये आपसे डेल्टा की बात की है क्योंकि जब मैं इसको बाय कॉलम 3 ओपन करूंगी तो ये मेरे को डिटर्मिनेंट ही देगा, सो दिस विल कम आउट टू बी डेल्टा। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू विल फाइंड द C11, C12 एंड C13 एंड आप जब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे और कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0। सो यहाँ पर क्या है कि हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स को। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है ताकि हम इस मैट्रिक्स में आ जाएं। तो जब मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करूंगी दिस विल कम आउट टू बी माइनस डेल्टा, तो आंसर इज डी। नाउ द नेक्स्ट वन इज f of x be a function satisfying f of x plus y is equal to f। आपको f of 1 गिवन है 2, तो जब मैं x को भी 1 ले लूंगी और y को भी 1 ले लूंगी वी विल गेट f of 2। f of 1 कितना गिवन है, 2 into 2 2 स्क्वायर, तो f of 3 कितना होगा, 2 into 2 plus 1 लिख सकते हैं हम इसको 3 को, तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 4, फिर आ जाएगा 2 की पावर 5। सो दिस विल बिकम अ जीपी, और जीपी के सम का हमें फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। उसको इसके इक्वल रखेंगे। यहाँ पर आपके यहाँ पर a जो है हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगी विच विल बी 1, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी इक्वेट करके तो आपके पास जो आंसर आएगा n का वो आएगा 10। सिमिलरली ये भी आपकी क्या बनेगी, जीपी बनेगी। ओपन करेंगे तो हम इसको, तो यहाँ पर भी जीपी के सम का फॉर्मूला लगेगा, तो आंसर विल कम आउट टू बी 682। सिमिलरली यहाँ पर भी जब हम x को 1 पुट करेंगे 2f of 1 प्लस 2 स्क्वायर f of 2 प्लस 2 क्यूब f of 3, ये दिस विल ऑल्सो गिव यू जीपी। तो यहाँ भी जीपी के सम का फॉर्मूला लग के आंसर आ जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी, ऐसा क्वेश्चन पहले भी दिखा गया है पेपर में,
इसमें क्या है, आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं गिवन, एक्स की फॉर्म में, वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम में आपसे बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल की बात की गई है, जिसमें तीनों वाले क्या है, एक्स। आपको और किसी चीज की वैल्यू नहीं गिवन, तो हम अपनी तरफ से लेट कर सकते हैं। और उन्होंने हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी रिसीव। सबसे पहले हमें गिवन है कि यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड मेडल्स इन बास्केटबॉल, ओनली एक्स स्टूडेंट गॉट द मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, एंड आफ्टर दैट द मेडल्स वेंट टू टोटल ऑफ 15 एक्स स्टूडेंट्स। तो जब मैंने इन सबका सम किया, P प्लस A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R प्लस X, दिस विल बी 15x, ठीक है। एंड इफ इट अवॉर्डेड 5x मेडल टू द बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में A प्लस P प्लस X प्लस Q जो है आपके पास है 5x, एंड इन द बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में 5x है, एंड फुटबॉल में 4x प्लस 15 है। फुटबॉल C प्लस Q प्लस X प्लस R, दिस विल बी 4x प्लस 15, एंड द नेक्स्ट जो आपकी इक्वेशन बनेगी फुटबॉल, P प्लस X प्लस R प्लस B, दिस विल बी, वॉलीबॉल में x प्लस 25 है। जब हम इन दोनों को, इन सबको आपस में सॉल्व करेंगे, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, मतलब 2 में तो मिले ही, 2 स्पोर्ट्स में तो आपको मिले ही एटलीस्ट, एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा तीनों भी मिल सकते हैं, मतलब P प्लस Q प्लस R, ठीक है, एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो प्लस x की बात करें तो जब मैं उसको सॉल्व करूंगी तो 40 माइनस आपके पास 6x आएगा। इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, मतलब P प्लस Q प्लस R की बात कर रहे हैं, वहां से ये 40 माइनस 7x आएगा। नाउ हाउ मेनी रिसीव्ड इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, मतलब वो आपसे A प्लस B प्लस C की बात कर रहे हैं। जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि P प्लस Q प्लस R ऑलरेडी हमारे पास है, विच विल बी 40 माइनस 7x, उसकी वैल्यू पुट करेंगे इन द इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A प्लस B प्लस C कि जिनको एग्जैक्टली 1 स्पोर्ट्स में मिला। सो द आंसर इज 8। नाउ हम, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें हमें A दिया हुआ है P प्लस Q, वेयर P इज सिमेट्रिक। हमें पता है हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेयर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये इसी का हेल्प करके हमें ये पता है। तो ये जब हम पुट करेंगे मैट्रिक्स, यहाँ पर A ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं, तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी ये, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी ये। नाउ द नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जब आप मिनिमम, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, दैट विल कम आउट टू बी दिस। और हमें पता है जब मैं यहाँ थीटा को आपका क्या पुट करूंगी, 1 पाई बाय 4, तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर इज 1 बाय 4। उसके बाद है ABC इज अ ट्राइंगुलर प्लॉट। आपके पास एक ट्राइंगुलर प्लॉट है ABC, AB ये साइड है C, AC ये साइड है B, एंड दिस विल बी A. AB is 16 meter, this is 10 meter, this is also 10 meter. A lamp post is situated at the middle of the side AB, ये middle में, तो ये आपकी 8 हो गई, ये आपकी 8 हो गई। This will makes an angle of 45 degree, ठीक है। ये 8 है, हमने क्या निकालना है, लैम्प पोस्ट पोस्ट एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan 45, तो h कितना आ गया आपके पास, 8 मीटर, ठीक है। और सिमिलरली अब यहाँ है ए बी अपॉन साइन सी, हमें साइन रूल पता है, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। बस उसी की हेल्प से हम जब यहाँ पर साइन रूल लगाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा बी। नाउ सिमिलरली यहाँ पर ये थोड़ी कैलकुलेटिव पोर्शन था, यहाँ पर cos a cos b cos c का फॉर्मूला पर लिखेंगे हम विद द हेल्प ऑफ साइड्स। cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ऐसे ही cos b का फॉर्मूला लिखेंगे, cos c का फॉर्मूला लिखेंगे, a b c की हमें वैल्यू पता है, वो हम पुट कर देंगे, और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर डी मिलेगा। ये हम स्किप कर सकते थे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी।
Now the next question is height and distance. There are 2 points P and Q due south of the leaning tower which leans towards the north. P is a distance x and Q is a distance y from the foot of the tower. Basically ये 3D का आपके पास क्वेश्चन है. तो cot 15 की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से. दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. वहां ये 90 डिग्री है बेसिकली क्योंकि ये 3D में है. तो जब हम वहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगी x माइनस वाई अपॉन 2√3. सिमिलरली द डायग्राम विल बी सेम. तो यहाँ से भी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो b आएगा आंसर. एंड इस ये कैलकुलेटिव पोर्शन है तो इसका भी b आएगा विद द हेल्प ऑफ सेम डायग्राम. उसके बाद ये बहुत इजी क्वेश्चन था. कोसेकेंड ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेकेंड थीटा. तो हम इसको ये लिख सकते हैं. So the answer will come out to be -2/√3. यहाँ पर cos c plus cos d का फॉर्मूला लगेगा. क्या होता है cos c plus cos d? जब cos c plus cos d का फॉर्मूला लगेगा 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. ये आपका कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आपका cos pi by 2 बचेगा which will be 0. तो सब कुछ प्रोडक्ट होके 0 हो जाएगा. So the answer is A. अब हमें ये पता है, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 minus theta. तो 1 minus cos theta, this will be cot pi by 8. और cot pi by 8 को हम ये लिख सकते हैं. एंगल हाफ हो जाते तो यहाँ pi by 4 आ जाएगा, यहाँ भी pi by 4 आ जाएगा. एंड वी विल गेट द आंसर B. और हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा किया जो भी आपके पास t रेशियो अंदर सेम बनाओ. तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम cosecant theta is hypotenuse upon perpendicular. So 4 is equal to 1 plus b square. ये आपका √3 आ जाएगा. तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो? cot इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर √3. √3 कब होता है आपका? cot इज √3 30 डिग्री पे. तो आपका आंसर आ जाएगा pi/3. यहाँ पर हमें cos 3c की वैल्यू निकालनी है. cos 3c इज 4 cos cube theta minus 3 cos theta. cos c की वैल्यू हम विद द हेल्प ऑफ cos रूल निकाल सकते हैं. क्या होगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab. बस ये वैल्यू निकाल के हम यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा A. नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं? जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे इन दोनों की स्टैंडर्ड एंगल से. सिमिलरली सेकेंड एक्स की हमें वैल्यू पता है. तो ये कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव होता है, साइन भी आपका नेगेटिव होता है. तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप tan थीटा और sin थीटा निकाल के उनकी वैल्यू पुट करोगे, बट दोनों ही नेगेटिव आएंगे. सो आंसर विल कम आउट टू बी नेगेटिव. तो आप ऑप्शन काट सकते हो वहां से. और जब पाइथागोरस से वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर आएगा B. ठीक है. इसको आप tan स्क्वायर 15 प्लस cot स्क्वायर 15 लिख सकते हैं. हमें दोनों की वैल्यूज पता है एंड यू विल गेट द आंसर बाय दिस. अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये है 2 पाई. 2 पाई से यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ साइन नेगेटिव रहेगा. तो ये आ जाएगा साइन 5 पाई बाय 6. ये आ जाएगा माइनस. तो आंसर इज माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 6. और 5 पाई बाय 6 को हम पाई माइनस पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं. तो यहाँ से आपका आंसर सॉल्व करके आ जाएगा -1/4. ओके. अब यहाँ पर हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. वेयर x is between 0 to 360 degree, how many values does x take?
तो यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे 0 के इक्वल, वहां से मेरे पास वैल्यूज आती जाएंगी। तो जो आपके पास आंसर रहना चाहिए, साइन एक्स कॉस एक्स के कब बराबर रहता है, 0 से 360 के बीच में, 4 वैल्यूज के बीच में। सो द आंसर इज 4। नाउ द नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है और एंगल बना रही है। तो tan 75 क्या आपका स्लोप है, तो 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ से y इज इक्वल टू एम एक्स, आपके पास ये लाइन है, और जब मैं x को 1 पुट कर रही हूँ तो ये इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है। उसके बाद एंटायरली लाइज इन द फर्स्ट, ऑफ कोर्स y इज इक्वल टू एम एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, तो बोथ आर करेक्ट। उसके बाद P3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, आपके पास ये है, दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, 3,4 आपका इसका मिड पॉइंट है। तो आपके पास यहाँ से देन व्हाट इज द इक्वेशन, तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी, क्या है, 3 इज इक्वल टू a प्लस 0/2, a 6 आ गया, 0 प्लस b/2 इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8। जब a आ गया b आ गया, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 करेंगे। जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। आफ्टर दैट द बेस ए बी ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है अलोंग द वाई एक्सिस, साइड है इक्विलेटरल है, तो तीनों साइड 8 होंगी, ये 4 हो जाएगी। द मिड पॉइंट ए बी इज एट द ओरिजिन, ठीक है। इसका ये होगा y0, ये मुझे निकालना है x, तो आपको ये साइड पता है, ये मुझे निकालनी है। दिस विल कम आउट टू बी विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा से, क्योंकि ये एंगल हमें पता है ये आपका 60 डिग्री का होगा, जो भी एंगल होंगे, तो ये 30-30 में स्प्लिट होंगे। तो सॉरी, ये 30-30 में स्प्लिट होंगे, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आपकी ये x की वैल्यू आ जाएगी 4√3। जब वो वैल्यू आ गई हमारे पास, और मेरे पास है AC के पैरेलल है, AC के पैरेलल है, तो दिस विल बी 8, मतलब ये हमारे पास है पॉइंट 8,0। तो आप वहां से डिस्टेंस निकाल दो जिसका स्लोप बराबर आ गया, क्योंकि पैरेलल है तो स्लोप इक्वल आना चाहिए, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू रीजन मेकिंग अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, एक्स इज A4 है, B6 है अलोंग द लाइन, ओरिजिन से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन making the positive intercepts, x is equal to 4 and y is equal to 6 on the coordinate axis lies on the line 0 0 से ओके सेंटर जो है लाई कर रहा है लाइन पे, तो कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, इस फॉर्म में लिखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में, जो आपको A4 और B6 दे रहा है वो आपका आंसर है। उसके बाद द सेंटर ऑफ एलिप्स, आपको एलिप्स की इक्वेशन पता है, x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1, ओके। मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस, अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो मतलब ये वाई एक्सिस वाला एलिप्स बन रहा है जिसमें आपका बी बड़ा है ए से, तो सेंट्रिसिटी इज 1 माइनस A² तो पासिंग पॉइंट पुट करेंगे, दो इक्वेशंस आएंगी, वहां से मेरे पास A² और B² की वैल्यू आ जाएगी, वो मैं पुट करूंगी, तो इसमें मेरे पास सेंट्रिसिटी के फॉर्मूला में पुट करेंगे A²/B², तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला, दिस इज द पैराबोला where one of the vertex of the triangle, ऐसे है triangle, if P is the length of the side of a triangle and Q is the length of the latest rectum, 4A is equal to √3, तो A is √3/4, latest rectum कितना होता है 4A, तो मतलब √3 आपको latest rectum दिया हुआ है। तो जो ये पॉइंट है, ओके, P is the length of the side of triangle, Q is the length of this, तो जब हमने ये पुट किया पॉइंट P, Q, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, P आपका आ जाएगा यहाँ से 6 एंड Q इज √3। जब ये वैल्यूज किसको सेटिस्फाई करेंगे, C को, तो द आंसर इज C। नाउ द नेक्स्ट वन इज, जब हम यहाँ पर रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल आनी चाहिए, वो इक्वल नहीं आ रही जब हम चेक करेंगे, और हमने ऑर्डर वाइज लेना, ठीक है, तो वो इक्वल नहीं आ रही, तो वो रेक्टेंगल है ही नहीं, लेकिन जब आप मिड पॉइंट निकालोगे दोनों के वो इक्वल आएंगे, सो ओनली 2 इज करेक्ट।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर. स्फीयर के केस में विच लाइज z एक्सिस इज द, जो टेंजेंट होगी वो एक प्लेन की इक्वेशन होगी. तो वो जो स्फीयर है वो, ये तो करेक्ट है. सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर क्या है स्फीयर का, -g, -f, मतलब 2, 6 एंड 4. तो 2, 3 एंड 4 ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो आपका 0 इज इक्वल टू 0 आएगा. बट कभी भी एक लाइन नहीं होती, एक प्लेन टेंजेंट होगी इन केस ऑफ 3D, तो ओनली 2 इज करेक्ट. नाउ 64th में आपको क्या, प्लेन कट द इंटरसेप्ट्स दिस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं. तो x अपॉन a, y अपॉन b प्लस z अपॉन c, यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी. a b c आर द डायरेक्शन रेशियोज टू द नॉर्मल टू द प्लेन. तो वो आएंगे 1, 1, 2. तो मुझे क्या निकालने, कोसाइंस. तो मैं डिवाइड कर दूंगी तो आंसर इज सी. ठीक है. उसके बाद द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द y एक्सिस क्या होते हैं, 0, a, 0. तो एक ही जगह कोई भी कांस्टेंट ले लो, दिस इज करेक्ट. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, तो ये तो होंगे, बट ये 0 होगा. ए और बी कोई भी नंबर है, सिर्फ बोथ आर करेक्ट. कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं हम. पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है. और हम ये लाइन वाइज चलेंगे. दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये -x होगा. ए वेक्टर, बी वेक्टर. ठीक है. तो जब मेरे पास दो इक्वेशन होगी विद द हेल्प ऑफ अ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वहां से दो इक्वेशंस बन रही है मेरे पास, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, माइनस एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इज इक्वल टू इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर. जब आप इधर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर दिस. अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो आएगा 0. जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 5 यूनिट वेक्टर है. ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज ए, 5a minus 4b, 4a डॉट b प्लस 10b डॉट a, b डॉट a लिखूं, a डॉट b लिखूं, एक ही बात है, -8b. ये 1 है. ठीक है. तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास एंगल आ जाएगा π/3. देखो, अगर वेक्टर सेम प्लेन में लाई करते हैं 68 क्वेश्चन, तो वो कोप्लेनर है. कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है 0. तो जब आप इसको नॉर्मल क्रॉस करके लिखोगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी 0 है, तो आंसर कितना आएगा, 0. नाउ द नेक्स्ट वन इज द वैल्यूज फॉर विच द ऑब्ट्यूज के लिए डॉट प्रोडक्ट हमेशा लेस देन 0 होता है. इसी का यूज करेंगे. दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा लेस देन 0 आएगा. डॉट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2x² माइनस 6x प्लस x². जब हम यहाँ से लिखेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी, x² माइनस 6x, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जो है यहां से आएगी. डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i का i के साथ 2x² प्लस 3x इंटू -2 माइनस 6x प्लस x². दिस शुड बी लेस देन 0. 2x² प्लस x², 3x² माइनस 6x लेस देन 0. 3x कॉमन ले लो, x -2 रह जाएगा. x इज इक्वल टू 2 आ रहा है. तो जब मैंने 2 लिया, ऑब्ट्यूज के लिए चीज लेस देन 0 आनी चाहिए, तो 0 से 2 के बीच में ही आएगा लेस देन 0. सो द आंसर इज दिस. नाउ द पोजीशन वेक्टर्स आपको गिवन है, आपको एंगल C निकालना है. ओके. A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डायरेक्शन रेशियोज हम निकाल सकते हैं अपॉन cos थीटा के इक्वल होंगे. वहां से हम जब एंगल निकालेंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा cos C इन दो वेक्टर्स के बीच में. यहाँ पर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्या है, z इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x, एंड इफ x इज नॉट एन इंटीजर 2.4 ले लो, तो y कितना आएगा, 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस 2.4 0.4. z क्या आ रहा है, 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विच विल बी -1. सो द आंसर इज 1. आप कोई और भी ले सकते हो जो इंटीग्रल वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉग और गॉफ. GOF कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन है G ऑफ X
के एक्स प्लस टू, पहले हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, और फिर जब मैं इसको पुट करूंगी तो के एक्स प्लस टू प्लस वन, ये एंड जी ऑफ एफ एक्स 4x प्लस वन एंड के 4x प्लस वन इज इक्वल टू, जब दोनों को इक्वेट करके लिखूंगी तो हमारे पास जो आएगी के की वैल्यू 7 आएगी। मिनिमम वैल्यू पूछी है, मिनिमम वैल्यू के लिए डेरिवेटिव करेंगे। पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग बी बाय लॉग ए लिख सकती हूँ, लॉग 10 1 होता है, तो डेरिवेटिव करेंगे हम वहां से। जब हमने डेरिवेटिव किया तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11, 2x प्लस 2 माइनस 1 आएगा। जब मैं, अब मेरे पास आई एक वैल्यू है, तो जब मैंने यहाँ पर -1 पुट किया तो log 10 10 आ जाएगा, विच विल बी 1, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप x की पावर x को t पुट कर दो, ये dt बन जाएगा, तो दिस विल बिकम t स्क्वायर dt। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा b। अब ये हमने पढ़ा है e की पावर एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव साथ में पढ़ा हो, तो इसका आंसर आता है e की पावर x एफ एक्स। तो दिस विल, ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव पढ़ा है साथ में, तो इसका आंसर आएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पर क्या है, 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हैं, तो cos x इंटू रूट ऑफ cos x, दोनों को अलग अलग कर दो डिनोमिनेटर को, दोनों के साथ जब हम सॉल्व करेंगे हम नॉर्मल इक्वेशन में आ जाएंगे। सो द आंसर इज सी। 77th में दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ, so the answer will be C. Here हम यहाँ log लेंगे दोनों तरफ, log y is equal to x log of x की पावर x, तो जब log लेंगे और डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। ओके, व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू? अभी मुझे ये पता चल रहा है कि ये आपका बन रहा है sin 3x प्लस cos 3x, तो x को हम पाई बाय 4 पुट कर देंगे तो वहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मिनिमम। ओके, एरिया ऑफ द रीजन, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल with the center 0 0 and y is equal to x and y is equal to 0, तो ये तो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1,0 0,0, तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1/√2 से 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा π/8। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है। यहाँ पर ये मॉड एक्स, ये पूछ रहे हैं, तो ये भी क्या है 0 0, x इज इक्वल टू 2 लाइन है, तो आपके पास ये बेस भी 2 हाइट भी 2, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पर आप सेकेंड स्क्वायर अल्फा -1 को क्या लिख सकते हो, tan अल्फा लिख सकते, tan स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, विच विल बी tan अल्फा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, ये है tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। सो दिस विल बी ऑप्शन बी। ये एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन कहता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होता है, जब ये ऐड करोगे तो ऑप्शन ए। यहाँ पर जब हम इसको जीरो पुट, इसको हम ये लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन 2 मॉड साइन 2x। मॉड कभी भी आपका ब्रेक होगा तो लेस देन पे मॉड माइनस में ओपन होगा, ग्रेटर देन पे इक्वल होगा, तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल नहीं आएगी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रही है, तो आपका लॉपिताल लगेगा। जब मैं इसमें 0 पुट करूंगी तो π/2 पुट किया तो 0/0 फॉर्म बनेगी 4, तो जब आप π/2 पुट कर रही हो तो आपका आंसर आएगा -4। यहाँ पर भी, यहाँ पर मॉड पहले ओपन होगा 0 पे, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स अपॉन एक्स फॉर x लेस देन 0, x स्क्वायर प्लस x बाय x फॉर x ग्रेटर देन 0, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 0। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x कॉमन हो गया, x प्लस 2, 0 पुट किया, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हमारी यहाँ पर। यहाँ पर आप h अलग अलग कर लो, पहले इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, साइन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, साइन h बाय h 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका रहेगा 2x प्लस h, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा साइन 2x विद द प्रॉपर्टी लिमिट एट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x। लॉपिताल से भी कर सकते हैं वैसे इसको। नाउ एच एक्स, यहाँ पर हमसे डेरिवेटिव की बात की हुई है, तो एच डैश एक्स इज 2 इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2 इंटू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो जब मुझे एच डैश और यहाँ पर एफ डैश एक्स इज जी एक्स, एफ डैश एक्स और ये जी डैश एक्स, आप 2gx कॉमन लो, एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स, तो यहाँ से मेरे पास एच डैश एक्स एक आपके पास 0 आ रहा है। एक्स कोई भी कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू पुट करो ऑलवेज 0 आएगा, और जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो ये एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू पुट करो हमेशा एक सेम कांस्टेंट आंसर आएगा, तो वो इक्वल है, तो बोथ आर करेक्ट। यहाँ पर हम क्या लेंगे 89th क्वेश्चन में, लॉग लेंगे दोनों तरफ। जब लॉग लेंगे और तो हमारे पास सिंपल एक नॉर्मल फंक्शन में आ जाएंगे और हम एक्स को 0 पुट कर देंगे उसमें, तो वो इजी है। यहाँ पर आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाने के लिए, तो और हमें ये भी पता है कि इसको मैं ये लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ये रह जाएगा आपके पास, a की वैल्यू और b की वैल्यू आ जाएगी कंपेयर करके, तो यू विल गेट द रिजल्ट 2a इज इक्वल टू दिस। हमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो डेरिवेटिव को हम 0 रखेंगे। जैसे ही हम डेरिवेटिव को 0 रखेंगे हमारे पास कंडीशन आ जाएगी tan स्क्वायर x इज इक्वल टू q बाय p। अब यहाँ पर है हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 7x स्क्वायर तो आपके पास आएगा, एक बार -2x -4x -6x ऐसे आएंगे, तो ये जब इनको ऐड करूंगी तो माइनस का 56 आएगा प्लस कांस्टेंट आएगा। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी 14x माइनस 56, दिस विल बिकम 0, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है 4, यहाँ कैलकुलेट करके। ओके, यहाँ पर भी मुझे पता है मॉड x लेस देन इक्वल टू a लाइज बिटवीन -a टू a, तो यहाँ पर आपको इसको ब्रेक करना है फंक्शन को। फर्स्टली दिस फंक्शन f of x is equal to minus x plus 1 for -3 to okay 0 0 to 3 एंड तो x इज इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन ये है, तो ये जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी तो ये 0 पे तो मिनिमा अटेन कर रहा है -3 0 पे तो मिनिमा अटेन कर रहा है, पर मैक्सिमम वो -3 पे भी कर रहा है 3 पे, बट इन्होंने ओनली की बात की है, सो दिस विल बी इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, तो ओनली 2 इज करेक्ट। ओके, यहाँ पर मैं इसको ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स लिख सकती हूँ, जब मैं इधर प्रॉपर्टी लगाऊंगी दिस माइनस ln ऑफ x dx 0 to 1। हमें पता है 0 से f ऑफ x dx को 0 से f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकती हूँ, दोनों इक्वल हो जाएंगे, सो द आंसर विल कम आउट टू बी दिस। अब यहाँ पर जो है ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी f ऑफ x dx, अगर इवन होगा तो ट्वाइस ऑफ 0 से a f x dx हो जाएगा, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 040 इंटू पाई बाय 2 दिस, तो 40 बाहर आ जाएगा, मेरे पास बचेगा ये बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी, so this will answer come out to be 40k। यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग करेंगे, ये ऑड फंक्शन है 0 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, साइन एक्स को टी पुट कर देंगे, कॉस एक्स डी एक्स डी बन जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा ए। उसके बाद है दिस इज अ सर्कल, ये साइन का ग्राफ है, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, तो पूरे क्वाड्रेंट में से क्या करो आप ये वाला एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो, विल गेट द आंसर दिस। हमें पता है कि जब dy बाय dx एंगल में हो जाए, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डिग्री तभी एग्जिस्ट करेगी जब x y और dy बाय dx में, तो दोनों ही केसेस में डिग्री तो एग्जिस्ट नहीं करेगी बट ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, ऑर्डर हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जिस्ट करता है, तो आंसर इज बी।
यहाँ पर आपसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला बोले, जितने कॉन्स्टेंट्स होते हैं आपके पास, जितने वेरिएबल होंगे हमारे पास इक्वेशन में, उतने ही ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो 2x 4a dy बाई डी एक्स, यहाँ से a की वैल्यू पुट कर देंगे x अपॉन dy बाई डी एक्स। तो जब हम ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा बी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी ये इक्वेशन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आई थिंक सो tan स्क्वायर x बाई 2। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे जब हम इसे, तो ये वेरिएबल सेपरेबल से secant स्क्वायर x माइनस 1 dx से सॉल्व हो जाएगी। तो आंसर विल गेट कम आउट टू बी सी। मीन की बात करें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की, एंड y विद द स्क्वायर, x be the mean of squares of first n natural numbers। जब हम इन दो, हमें ये पता है समेशन n स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n plus 1 by 6, summation n is n into n plus 1 by 2, so the answer is 27। कॉम्पोजिट नंबर 1 to 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर है, जिसमें से 1 आपका ना तो कॉम्पोजिट है ना तो प्राइम है, तो बच्चे कितने हैं तुम्हारे पास ओवरऑल? टोटल 50 है और 15 निकाल दिए आपने 34। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा बी। यहाँ पर NC7 लिख सकते हैं, जैसे ही n को आपने 8 लिया ग्रेटर देन 7, तो वो मल्टीपल ही नहीं आ रहा 7 का, तो आंसर इज 0, इम्पॉसिबल। यहाँ पर x plus y should be divisible by 4 and for x or y are chosen at random from a set of first 10 natural numbers। divisible by 4 तो 4 8 16 20 24 4 के टेबल में आने चाहिए, तो ये आपके पास ओवरऑल आएंगे 10C2 अपॉन 21। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपको। देखो इससे वो बोल रहे हैं x is chosen at random from the total n natural number है, but is the probability that number chosen satisfy this equation। ये satisfy सिर्फ 1 पे करेगा, तो टोटल n है, सिर्फ 1 को छोड़ के बाकी सब कुछ करेंगे, तो फेवरेबल n माइनस 1 टोटल n, तो आंसर इज सी। नाउ एक फेयर डाइस आर टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो एपी। एपी आपका 1 2 3 भी है, 2 3 4 भी है, ऐसे है। तो ये जो केसेस बनेंगे हमारे पास ओवरऑल 3 6 into 6 20 बनेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा। ये हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं। P of A dash B, मतलब ओनली B की बात कर रहे हैं, P of A इंटरसेक्शन B dash ओनली आपसे A की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं A यूनियन B का होल डैश। सो इसकी वैल्यू है 0.1, इसकी वैल्यू है 0.2, इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू है P of B ओनली 0.4, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.7। 5 coins are tossed, what is the probability getting at most? ये बाइनॉमियल का क्वेश्चन है। n5 है, जब भी नंबर ऑफ ट्रायल्स 3 से ज्यादा बढ़ जाते हैं, p is the probability of success, 4 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आना सक्सेस है, तो हेड आना क्या है आपके पास? फेलियर। तो 5c n at most p of x less than equal to आपको 4 निकालना है, तो आप सिर्फ 1 में से p of x is equal to 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 fair dice are thrown, what is the probability of getting a total greater than or equal to 15? greater than or equal to 15, 3 डाइस थ्रो किए तो मैक्सिमम 18 आ सकता है, तो 15 16 17 18 ये केसेस देख लेंगे, ओवरऑल 216, ठीक है। तो वो केसेस देख लेंगे और चेक करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 5/54। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हिट्स अ टारगेट is 0.5 and the probability that at least one hit n is 4, person hit a target is सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो फेलियर की भी 0.5 आएगी। बाय अप्लाइंग द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये है आपका लॉ ऑफ परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। 2 balls, 3 black balls and 4 red balls. What is the number of ways of drawing the 3 balls from a box with at least 1 black ball? Okay, at least 1 black ball हो, टोटल आपको
मैं मानती हूँ कि मैंने कोई ब्लैक बॉल नहीं निकाली, तो वो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6C3/10C3, तो आंसर सॉल्व करके आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है। Now during war, 1 ship out of 5 was sunk on an average in making a certain voyage. What is the probability that exactly 3 out of 5 ship would arrive safely? तो P अब 4/5 है, Q आपका 1/5 है. By applying the binomial distribution हमारे पास आंसर आ जाएगा 128/65. Now a card is drawn from a pack of 52. A gambler bets that either a spade or an ace. स्पेड का 13C1 और मतलब प्लस एस कितने होते हैं 4C1 अपॉन 52C1. तो जो भी आएगा उसकी रेशियो देख लेंगे कितनी आएगी. ऑड्स अगेंस्ट चाहिए, ये ऑड्स इन फेवर आएगा. जो भी रेशियो आएगी उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. देखो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, उसका चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल पे कोई फर्क नहीं पड़ता. 0.7 है रो की वैल्यू. सिल्वर जुबली की बात कर रहे हैं तो मतलब एज ऑफ कॉज बढ़ रही है, कुछ एडिशन हो रही है. एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल रिमेन सेम. उसके बाद नेक्स्ट इज ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि स्ट्राइक हुई, प्रोबेबिलिटी की स्ट्राइक हुई 0.6. प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब गेट कंप्लीटेड ऑन टाइम, स्ट्राइक ना हुई. ये स्ट्राइक होने की है, स्ट्राइक ना होने की है. काम कंप्लीट होना चाहिए चाहे स्ट्राइक हो चाहे ना. उन्होंने बोला है दैट विल नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. तो मैं क्या करूंगी, पहले काम कंप्लीट होने की करूंगी. मैं मानती हूँ स्ट्राइक होने पे जो काम कंप्लीट हुआ इंटू 0.85 प्लस 0.4 इंटू 0.35. ये हमारी काम कंप्लीट होने की हुई. तो 1 ये आ रहा है आपके पास 0.55. जब आप इसको 1 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.45, क्योंकि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. तो वो नॉट की बात करें तो मैं 1 में सब्ट्रैक्ट करूंगी जब कंप्लीट हो गया. ओके यहाँ पर हमसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात कर रहे हैं सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100. तो सबका जब मैं फाइंड आउट करूंगी तो बायोलॉजी का सबसे ज्यादा आ रहा है, तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ मार्क्स बायोलॉजी शो करेगा. इसी फॉर्मूला से जब मैं वैल्यू पुट करूंगी सिग्मा और एक्स बार की फॉर मैथमेटिक्स तो मेरे पास 37.5% आ रहा है. यहाँ पर है मीन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हमसे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. मीन का फॉर्मूला होता है n/2. ये कॉन्टिन्यूस डाटा है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. सबसे पहले n/2 देखते हैं. इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास मीन आ जाएगा. फिर हम मीन डेविएशन का अबाउट ये लगाएंगे fi इंटू xi माइनस मीडियन अपॉन समेशन fi. यहाँ पर fi क्योंकि अबाउट मीन निकाल रहे हैं तो मीन सब्ट्रैक्ट करूंगी अपॉन समेशन fi. तो ये कैलकुलेट करके आंसर आ जाएंगे. थैंक यू.